आपका बहुत बहुत स्वागत है eagerly waiting to explore the world of astrology with you today. Astrology is the motherboard of all in occult science. एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस है न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, वास्तु. What is Lal Kitab? What is I'm really intrigued. I heard about this. इफ यू गो टू एस्ट्रोलॉजर, वो बोलते हैं कि आप ये रेमेडी करो तो आपका अच्छा होगा, या दैट विल गिव यू अ बूस्ट. तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, मेरे को ये रेमेडी करना है. वंस यू जस्ट थिंक नो, इट स्टार्ट्स वर्किंग. लाल किताब is so effective. We count 9 planets, that is Sun, Moon, Jupiter, Mars, Mercury, Saturn, Rahu, Ketu and Venus. में सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, जैसे आपने ही बोला, which you also mentioned, शनि. Why is that so? शनि छड़ी लेके ठहरता ना, जो आप कर्म करोगे उसका पूरा फल मिलेगा. 2024 it comes to 8. 8 is Shani, and Net this result. is the fact that Saturn gives result. द आयरॉनिक शो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे गेस्ट है राखी जैन जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट है. ये हमारा पहला एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एपिसोड है, और इस एपिसोड में हमने एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात की है. हाउसेस क्या होते हैं, प्लैनेट्स का रोल क्या होता है, ज़ोडिएक साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन्हीं सब बातों पे ये पूरा एपिसोड आज हुआ है. इस एपिसोड को देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि द आयरॉनिक शो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. इस एपिसोड के छोटे छोटे क्लिप्स आपको द आयरॉनिक शो क्लिप्स चैनल पे मिल जाएंगे. आयरॉनिक शो क्लिप्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और इसका पूरा ऑडियो एक्सपीरियंस आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा. एंजॉय. राखी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. हाउ आर यू? I'm good. How you doing? Absolutely good, and eagerly waiting to explore the world of astrology with you today. So just to give you a quick background on the Ironic Show, we have, had guests who are psychics, we had numerologists, tarot card readers, but till date we were not able to do a astrology based episode. So finally, with you today, that checklist is also going to happen. And yes, so being the first episode, so just to set the context of the overall podcast today, so we'll keep it basic for the listeners. When I say basic, right, so we want to talk more about the zodiac signs. We want to talk more about the planets, what they represent, and what characteristics they bring in, and what certain phases that come in your life, why those things happen. So let's focus only on the basics of astrology today, being the first episode on astrology. So let's start with a very basic question. How are you? Well, hi Ronak. Thank you so much for this opportunity. This is my second podcast. Yeah. Oh, So wow. in practicing, I've been practicing since 10 years, Okay. and I've been studying from around 14-15 years. मैं ये फील्ड में इसलिए आई, व्हेन आई वाज इन 10th आई वेंट टू पूना फॉर 1 month फॉर सम कोर्स, एंड देयर मैं वो टैरो कार्ड्स देख के आई गॉट फैसिनेटेड, तो आई वांटेड टू लर्न. तो फिर आई लर्नड देयर बेसिक्स. आई लर्नड देयर, आई पुट द टैरो डेक एट होम एंड एवरीथिंग. बट एज यू नो, एल्डर्स एंड ऑल, ये सब में नहीं पढ़ना है, वी शुडंट डू ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स वर देयर. फिर वो बंद हो गया. Then I was back in my studies, and my career was like, I joined my dad's business. Then I got married. I was into my this homemaker kind of thing. Suddenly एक दिन मेरे को ऐसा लगा, मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ? What am I doing for myself? Now I'm balancing the responsibilities. It is not you're free from responsibilities. You can never be. I wanted to just share my knowledge कि there are so many myths about so many things. और आजकल के जनरेशन के बच्चों को हर चीज उनको चाहिए साइंटिफिकली, लॉजिकली. दे आर टू लॉजिकल. तो ठीक है, देन आई स्टार्टेड कंसल्टेशन, आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, एंड नाउ आई एम विद यू. Thank you so much for being here. So let us start from a point that many of us, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं. So just to give you a backstory, my father is an astrologer.
Oh, right? wow. He does not practice anymore because of his age and eyesight and everything. But he used to be a astrologer. So my father was an astrologer, but personally, me, I was not very how do I put it? I was not a believer. I was not a believer, but there are many people like me. There are many people like me who don't believe probably or used to believe in astrology, but whenever there is someone, whenever they will hear someone that this person can read charts or he or she can read hands, we will be the first one to give her hands ki अच्छा मेरा क्या होने वाला है बताओ. You get Right, so there is information to know. right. So there are, I think, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं who are very inquisitive, but at the same point of time, we don't admit that we believe in astrology. True. So why is that so? Why is this paradox? See, astrology ना ऐसा एक you can say it's a hidden knowledge जो Hmm. सब मानना चाहते हैं, सब करना चाहते, सब जानना चाहते, but they are not comfortable in agreeing that. क्योंकि then people start judging you कि यार ये कराता होगा, ये वो वैसे रीडिंग कराए, इसके लिए ऐसा हुआ. ऐसा कुछ नहीं है. Hmm. आपका मेहनत और किस्मत दोनों शुड बी इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, मेहनत करना बहुत जरूरी है. ऑल एल्डर्स सेयर्स, we've done it, we are seeing people doing it. तो इट इज कंपल्सरी कि ठीक है आपको मेहनत तो करनी है. मेहनत, अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूं कि आप मेहनत कर रहे हो और आपका वो टाइम अच्छा नहीं है या वो पीरियड आपका फेवरेबल नहीं है, आपको मेहनत का फल मिलेगा लेकिन द लेवल विल बी वेरी लेस. If you take our the lower class people, our helpers who help us always, our workers, our helping hands, ये लोग कितनी मेहनत करते, अपने से ज्यादा मेहनत करते, तो इनको तो इनका अच्छा मिलना चाहिए ना. Why are they still struggling? So there's few connections between मेहनत करो, आपका वक्त सही रहना चाहिए. वो वक्त कैसे सही होएगा? आपके पास्ट लाइफ कर्मा से. योर कर्मास ऑल्सो मैटर. Okay. तो दैट्स द डिफरेंस कि भाई आप मेहनत भी करो और आपका टाइम भी फेवरेबल रहेगा. अगर आप मेहनत थोड़ा करोगे और टाइम फेवरेबल रहेगा ना, यू विल रीच टू द हाइट्स. और कभी कभी टाइम ओके रहेगा और फिर आप मेहनत करोगे ना तो बहुत मेहनत लगेगी और बहुत टाइम लगेगा आपको. एक where you want to reach ना, वो ड्यूरेशन के लिए बहुत टाइम लगता है. So when you say जब आप कहते हो कि favorable time, what exactly do you mean? I mean, do you See, mean astrology yeah? basically is when we are born at some time. Universe is all about elements. Okay? Whatever we are talking is all about elements. The way we are behaving is all about elements. तो generally क्या होता है, when we are born, जो planets रहते, there are few planets which are moving around. And when we are born, तब एक वो snapshot हो जाता, that is your screenshot, कि आप जब born हुए वो टाइम पे आपकी ये कुंडली बनी, that is called as कुंडली. तो वो कुंडली जो बनेगी, it has 12 houses. Every 12 houses has the pros and cons, all the plus points and negative points, and then they are ruled by planets and many things are there in astrology. ये एक ब्रॉडकास्ट नहीं, आपको शायद 10 15 20 पता नहीं कितनी लेने पड़ेंगे, वो चलते रहेगा. बट एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जब आप बॉर्न होते हो, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है. अब फॉर एग्जांपल, यू आर माय फ्रेंड, आई नो यू, बट आई डोंट नो योर फ्रेंड, right? So I don't know whether he is harmful, whether she is harmful, or she is good, or she is a well wisher for me. प्लैनेटरी के भी ऐसे ही चीज रहते कि प्लैनेट्स भी फ्रेंड्स रहते, एनिमीज रहते, न्यूट्रल रहते. तो जब आप बॉर्न होते हो, आप स्पेसिफिक एक चार्ट लेके बॉर्न होते हो, आपका प्लेसमेंट रहता है चार्ट का, उससे आपके दशाज रहते, बिकॉज एवरी प्लैनेट हैव फ्यू दशा. मेनी पीपल नो ऊपर का, हाँ मेरा जुपिटर का महादशा चल रहा, मेरा है ना मर्क्यूरी का महादशा चल रहा, मेरा शनि का महादशा चल रहा. आई मीन वो सब सुन के समटाइम्स दे गेट हैप्पी, समटाइम्स दे गेट टेंस्ड कि ये सब है क्या. बट देयर इज सम प्रोसीजर टू कैलकुलेट द दशाज. ये दशा आपके चार्ट से मैच होता है और फिर वो बोलते हैं कि वो फेवरेबल है या नहीं है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका शनि का महादशा चल रहा, इफ यू जस्ट हियर दिस, गूगल इट, शनि महादशा, इट विल से ऑल 100 points that it is bad, you should do this, you should do. And if Saturn is good in your chart,
दैट मीन्स दैट इज फेवरेबल टाइम फॉर यू. आपको आपके फ्रूट्स तब मिलेंगे. Okay. So that's the importance of astrology. Basically, astrology is study of stars. It is study of planets, which is completely based on astronomy. Okay. So astrology is the motherboard. This I say everywhere. Astrology is the motherboard of all in occult science. एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस है न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, वास्तु एंड व्हाट ऑल. जो भी अकल साइंस के आता दैट इज अंडर एस्ट्रोलॉजी. सो इट इज नथिंग बट अ मैप टू स्टडी वंस लाइफ. आप लाइफ चैलेंजेस देख सकते हो एस्ट्रोलॉजी से, आप आपकी हैप्पीनेस देख सकते हो, आप कैसे डायरेक्ट अपने लाइफ को कैसे डायरेक्ट करना है विद योर प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स. व्हाट आर योर पॉजिटिव ट्रेट्स, व्हाट आर योर नेगेटिव ट्रेट्स, everything astrology says. Basically, astrology is a torch bearer to show the correct guidelines. So then अगर एस्ट्रोलॉजी से अगर हम ये अपने बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं या फिर सही ट्रैक पे ला सकते हैं, then what is the role of luck in all this? क्या लक का कोई रोल होता है आपका, और then again it's all guided by these planetary motions? Basically देखो, अगर आपको कुछ करना है, अगर इफ फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, ठीक है, बट माय स्टडीज आर ऑपोजिट टू इट. ओके, बट नाउ मेरे स्टार्स में को एटलीस्ट उतना एक गाइडेंस आपको मिलता है कि आपको फैशन डिजाइनिंग है नहीं है, यू कैन डू इट और नो. आप मेहनत आपकी करेक्ट जगह पे लगाओ. आप आपकी मेहनत अगर इफ यू पुट इट इन द राइट वे, यू विल गेट द राइट आंसर. इफ यू हैव चॉइसेस ना, तो फिर वो वैसा ही रहेगा. मैं ये नहीं बोल रही 100% लक है, नो, इट इज 50-50. 50 मेहनत है, 50 लक है. बट दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिलती है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. Okay. So suppose let me just take one step further. Suppose I am interested in particular field. For example, let's say at this point, suppose I am interested in doing organic farming, right? Okay. But Yes. my charts say otherwise, that that I am not probably organic farming is not very suitable to me. There could be other things that I can do, probably start a cafe or do XYZ, whatever it is. But my interest is somehow into organic farming. So can astrology in that case help me to guide me in a way कि मैं organic farming कर सकूं in a profitable manner? देखो, कर सकते हैं, लेकिन वो ही है. फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय अ प्लैनेट. अभी नाउ यू आर डूइंग अ शो जहां पे आपका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड. तो कम्युनिकेशन को रूल करने के लिए वी सी प्लैनेट मर्क्यूरी. दे आर मेनी कॉम्बिनेशंस, बट बेसिक है कि मर्क्यूरी अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो अच्छा है. बट कम्युनिकेशन रह के आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए उसके साथ. तो अगेन यू हैव टू सी सन. सो दे आर मेनी थिंग्स. तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए सन देखना है, आपको कम्युनिकेशन के लिए मर्क्यूरी देखना है. ये प्लैनेट्स में से, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये प्लैनेट्स में से आपका जो कौन सा स्ट्रांग है. अगर आपका सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज योर कम्युनिकेशन इज गुड. आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप कैमरा पे मत करो, यू स्टार्ट राइटिंग. तो वो आपको बूस्ट कर रहा, जो आपका प्लस पॉइंट है वो बूस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपके चार्ट में 1% भी चांस है कि हाँ इसमें ये इतनी सी मेहनत करेगा तो लग जाएगा, तो यस, दे आर वेज वेयर वी कैन डू मेनी थिंग्स टू गेट द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट करेक्ट. एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे चीजें, वैदिक, यू मस्ट बी हियरिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, PNN है, and you have Lal Kitab, you have mundane astrology. They have many types of astrologies. Then there's KP. So there are many astrologies. What is Lal Kitab? What is, I'm really interested. I've heard about this. Yeah, Lal Kitab generally क्या रहता है, आपका जो मेन चार्ट रहता है, लग्न, जो आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट रहता है, दैट वी सी विद वैदिक. उसमें योग्स वगैरह बनते, सीइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स.
अब जैसे आप बोले आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना है, अगर मेरे को आपको कुछ रेमेडी देना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर फार्मिंग, इफ यू वांट योर मार्स टू बी स्ट्रांग, what should I do to make your mass strong? For example, if the mass is sitting in your negative house, I want that mass to give you positive results seeing the positive house. तो ये जो रेमेडीज रहते, दैट कम्स फ्रॉम लाल किताब, विच इज Okay. वेरी वेरी इफेक्टिव. लाल किताब इज अ एस्ट्रोलॉजी कि आप उसमें पूरे रेमेडीज रहते हैं, और कभी कभी रेमेडीज इतने स्ट्रांग रहते कि इफ यू गो टू एस्ट्रोलॉजर, वो बोलते हैं कि आप ये रेमेडी करो तो आपका अच्छा होगा, या दैट विल गिव यू अ बूस्ट. तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरे को ये रेमेडी करना है. वंस यू जस्ट थिंक नो, इट स्टार्ट्स वर्किंग. लाल किताब इज wow. सो इफेक्टिव. आप फिर जब रेमेडी करोगे तो उसका इफेक्ट और रहेगा, और रेमेडी के बाद यू विल गेट द रिजल्ट्स वेरी सून. तो लाल किताब इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. चलिए थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करते हैं. सो अगर मैं सपोज आई कम टू यू राइट फॉर माय एस्ट्रोलॉजी और चार्ट्स टू बी डन, सो आपको सबसे पहले बेसिक्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं? सो डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, या आपको बेसिक और क्या चाहिए होता है किसी के लिए? आपको, अब मेरे को आपका नाम चाहिए, ऑब्वियसली नाम चाहिए, बर्थ डेट चाहिए, द मंथ, डेट एंड द ईयर. आई नीड द टाइमिंग ऑफ योर बर्थ एंड द प्लेस ऑफ योर बर्थ, बिकॉज वो प्लेस से ही आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से Right. आपका चार्ट बनता है. अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वी विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स कि कहाँ पे कब क्या प्लेस था, एंड देन आपका चार्ट बनता है. बिकॉज एवरी प्लैनेट moves around at their own speed, they have their degrees, and that is too much into detailing. तो बेसिकली आपका चार्ट बनाने के लिए ये बेसिक डिटेल्स चाहिए, इसलिए आपका चार्ट बनेगा. Okay. कई बारी बहुत बारी ये होता है राखी कि जब सपोज अगर इफ वी आर born at let's say what is the time now, it's 1:56 right? So if someone is born at 1:56 p.m. right now, जब डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को बताया कि आपको बेबी हुआ है, सपोज उन्होंने 1:56 बताया बट कभी याद नहीं रहा, कुछ हुआ 2-4 मिनट प्लस माइनस इधर हो गया, ओवर द इयर्स लोगों को याद नहीं रहता है, वो बोलेंगे 2 बजे हुआ था मैं. तो क्या उससे डिफरेंस आता है चार्ट बनने में, प्लस माइनस कुछ मिनट्स के डिफरेंस से? इसमें प्लस 5 मिनट्स 10 मिनट्स कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरी 2 आवर्स में आपका लग्न चेंज होता. द नंबर what is written in your first house changes every 2 hours. ओके. अगर 25 मिनट्स 30 मिनट्स ऊपर चेंज होता ना, तो फिर वो नक्षत्र जो फाइन ट्यूनिंग रहता, फाइन कैलकुलेशंस रहता नक्षत्र का, दैट चेंजेस. ओके. बट बेसिकली योर लग्न, योर फर्स्ट हाउस ऑफ योर चार्ट changes every 2 hours. Okay. And what one is more one more please, thing I would please. like to add to this is, like old people of around 1970s or 19 हाँ 60s 70s, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि हमारा टाइम क्या है बॉर्न होने का. वी Right. जस्ट नो द डेट. पहले तो डेट भी नहीं, तिथि मालूम डेट भी नहीं करते पता. लोग. दे नो हाँ ठीक है ये अमावस पे हुई थी, वो महीने के अमावस पे. सो अभी तो वी हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन गो टू दैट. नाउ विद देयर एट्रीब्यूट्स, their behavior, their nature, we can remove the dates also. आप डेट से उनकी कुंडली भी बना सकते हैं. अगर वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, फिर भी आपको सोल्यूशन अभी का भी चाहिए, देयर इज अ एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड प्रश्न कुंडली. फॉर प्रश्न कुंडली वी नीड नथिंग, जस्ट योर क्वेश्चन, वी मेक द कुंडली एंड देन वी आंसर. दैट इज ओनली फॉर 1-2 questions, not more than that. For detailing, you need the Vedic astrology. What do you mean by Prashna Kundali? You mean I need to ask the question, or you will be asking the question to the? You will be asking me the question. I am the astrologer. Okay. मैं अभी की कुंडली लगा दूंगी, आपका क्वेश्चन क्या है वो स्टडी होके, कैलकुलेट होके, देन आई विल से हाँ ठीक है आपका ये काम हो जाएगा नहीं होएगा. सो दिस इज जो बहुत जिसको इंस्टेंट चाहिए, नहीं बहुत अर्जेंट है और मेरे पास डिटेल्स नहीं है, या मेरे पास लाइक आई सेड सॉफ्टवेयर नहीं है, या मेरे पास अभी आई डोंट हैव दैट टाइम. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रश्न कुंडली आल्सो, जो बहुत इंस्टेंट बनता है, एंड देन यू गेट योर आंसर्स. ओके. वाओ. ओके. सो ओके, तो आपको प्लस माइनस 25 का डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ मिल गया, प्लेस ऑफ बर्थ मिल गया, देन यू गेट द नेम. देन हाउ डू यू प्लॉट इट ऑन अ चार्ट? प्रोसेस क्या होता है? बेसिक प्रोसेस क्या होता है?
फर्स्ट थिंग, जब आपकी कुंडली बनती है, हम लोग की पहली नजर जाती है कि आपका लगन क्या है, व्हाट इज योर राइजिंग साइन, व्हाट इज योर एसेंडेंट. So before we even go there, can you explain what is Kundali? I mean, very, because we are starting with the basics of astrology. So let's keep it very basic. What is a Kundali for someone maybe who is just starting to pique his interest in astrology? Yeah. So I have a chart ready with me, if you can see. Hmm. This Yeah. is Kundli. This is a North Indian Kundli. South Indian Kundli Okay. थोड़ा different बनता है. This is a Okay. North. ये जो houses है different Mm-hmm. these are 12 houses. We are Okay. surrounded with 12 houses. ये 12 houses है, और फिर ये जो numbers लिखे हुए रहते, Hmm. the numbers what are written is your zodiac signs. Like Okay. this is a 12 number on the first house. You, if you can see, it's 12 number. तो 12 number is Pisces. तो your लग्न is Pisces. Okay. तो ऐसे वो रोटेट होता है, फिर वो घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, इन दैट हाउस विच प्लैनेट इज सिटिंग, इज इट फ्रेंडली टू पाइसेस लाइक जुपिटर, इज इट like in this kundli Jupiter is sitting in Pisces in the first house. Okay, this is the first house. You can see Ju is Jupiter, and this is 12. Okay. So, and this is 12. So this means 12 is Pisces and Jupiter. So is Jupiter friendly to Pisces? फिर जो ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस इज अबाउट योर सेल्फ. ऐसे 12 हाउसेस के हर चीज रहते हैं. इसमें आप आपके मदर के लिए देख सकते हो, फादर के लिए देख सकते हो, आपके ससुराल वालों के लिए, योर इन लॉज, योर हस्बैंड, योर पार्टनरशिप, योर चिल्ड्रन का एजुकेशन. देयर सो मच इनटू इट दैट यू कैन सी इवन योर मामा, चाचा, एवरीवन ओवर हियर. Wow. सो Seriously. एस्ट्रोलॉजी इज दैट डीप. अगर Okay. ये मैं फर्स्ट हाउस देखूंगी, दैट इज अबाउट मी, माय फिजिकल स्ट्रक्चर and my nature, how do I take things, do I get easily hurt, या मेरे को बहुत, I have too much of ego, all these things tells the rising sign. And then if you go to the second house, for example, ये second house में you have Rahu and one is written, one is Aries. How do you go about the houses? So first, second, third कैसे आप उसको plot करते हैं? ये बेसिक है कि ये फर्स्ट हाउस यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th. Okay. 12 हाउसेस. ओके, एंड देन ये होने के बाद जो आपके प्लैनेट्स है वो टाइम पे वो घर कौन से घर पे, फॉर एग्जाम्पल you must have been hearing on Insta or on Google or on many videos कि Saturn is transiting, Jupiter is going to transit in 2025. Saturn इसमें Pisces से वहां जा रहा है. We hear things कि Pisces से Aries जा रहा है, Aries से Taurus जा रहा है. So there's a movement of planets also. So basically this is the कुंडली. यहाँ पे आपके पूरे planets आ जाते हैं, आपके पूरे zodiacs आ जाते हैं. We have 12 zodiacs, so 12 houses, 12 zodiacs. Every zodiac is again ruled by a planet. In numerology, every number is ruled by a planet. So the importance of planet is so important. Okay. So if you have to list down कि कुंडली के क्या क्या components होते हैं, you said houses, 12 houses हो गए, 12, then 9 planets हो गए, then your 12 zodiac signs. हाँ, we do Vedic, तो we have 9 planets. We don't count Pluto, Uranus, Neptune, because this is not Western astrology. We are doing Indian astrology, तो उसमें we count 9 planets. That is Sun, Moon, Jupiter, Mars, Mercury, Saturn, Rahu, Ketu, and Venus. Okay. These are the 9 planets where we work on. 12 houses is 12 zodiacs. तो zodiacs are again ruled by planets. Planets भी, as I told, कि friendly signs रहते, friendly planets रहते, neutral planets रहते, enemy planets रहते. For example, if sun is sitting with Rahu, like एक ही घर में अगर ये Jupiter के बदले sun और Rahu है, तो sun and Rahu are not good. Okay. They are enemies. Let's start with the basics of, जैसे अपने बेसिक हमने थोड़ा सा कुंडली के कंपोनेंट्स के बारे में समझा. तो एक हो गया आपका zodiac sign सबसे पहले आ गया, then your houses, then your 9 planets. So let's start with the zodiac signs then. What is zodiac signs, क्या कहते हैं? See. So zodiacs is 12 zodiac signs.
these signs are determined by the position of the sun. जैसे सोलर सिस्टम में सन बीच में है, प्लैनेट्स मूव होते रहते, तो वो कौन Right. से डायरेक्शन में मूव होते, कितने डिग्री से मूव होते, वो हिसाब से आपके जोडियक्स बनते. Okay. And then zodiacs again, they, as I told, planets से rule होते. Planets again are connected to elements, जो आप वास्तु में बहुत सुनते हो कि यहाँ पे फायर रहना चाहिए, यहाँ पे वाटर ज्यादा रहना चाहिए, आपका नॉर्थ खुला रहना चाहिए, आपका ईस्ट हल्का रहना चाहिए, आपका साउथ हैवी रहना चाहिए. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. Okay. एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, प्लैनेट्स आर इम्पोर्टेंट. ये दो चीज हो गए. तो फिर बाद में द फाइन ट्यूनिंग इज कलर्स. यू कैन वर्क विथ कलर्स, बिकॉज अगर मैं बोलूंगी किसी के घर जाके वास्तु, इफ आई टेक अ वास्तु टॉपिक, और मैं किसी के घर पे जाके बोलूंगी कि आपका ये गलत है, ये रूम ही गलत है, तोड़ दो, दे विल किक मी आउट. दे विल से थैंक यू वेरी मच, मेरे को इतना खर्चा नहीं करना है, मैं अभी तो घर बना इतना खर्चा करके, आई डोंट वांट दैट. तो देन आई विल गिव अ सिंपल रेमेडी की ठीक है आप ये कलर का एलिमेंट इधर रख दो. जैसे मैथ में सीखे प्लस एंड प्लस गिव्स यू प्लस, माइनस एंड माइनस गिव्स यू माइनस, एंड प्लस एंड माइनस गिव्स यू माइनस. ऐसा ही इज थिंग्स ऑफ बैलेंसिंग. तो कुंडली भी चीज है जो अब वी कैन बैलेंस आर नेगेटिव ट्रेट्स. Okay. So we are ruled by 12 planets. Our 12 zodiacs, sorry. 12 zodiacs. Our first zodiac is Aries. Now Aries, if you see the symbol of Aries, which is also known as Mesh in Hindi. Yeah. If you see the symbol of Aries, it is a ram. So how are rams? Rams are full of energy. So Aries people are energetic. Okay. Aries people, generally you find them with leadership qualities. Okay. They have very good leadership quality. They are very adventurous. They love challenges. They love to start new things. जैसे आप कुछ भी स्टार्टअप करोगे तो कोई तो एक एरीज पर्सन पक्का रहेगा जिसका दिमाग चलता है कि कुछ नया करना है. Okay. Aries people are very action oriented. They are decision makers, but sometimes they are too impulsive and impatient. क्योंकि उनको हर चीज, as they have leadership qualities, उनको हर चीज उनके हिसाब से करना है. तो उनको बहुत हर चीज इंस्टेंट चाहिए, नहीं जल्दी करो जल्दी करो. दे आर नेचुरल लीडर्स. And among all the 12 zodiacs, Aries, you can say they are the most independent amongst all the zodiacs. So is it a general statement, or does it also differ from person to person, depending on their own other characteristics and See, other? this is a general perception कि ठीक है एरीज पर्सन ऐसा रहेगा. लेकिन अगर जैसे उसके एरीज में अगर राहु बैठ गया तो राहु के कैटेगरीज भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे. तो Right. राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, वो कौन से घर में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, फिर एरीज में बैठा है. तो एवरी, एज आई टोल्ड यू, एवरी फैमिली मेंबर कैन बी सीन विद योर कुंडली. तो वो कौन से फैमिली का घर है, देयर इज टू मच इनटू इट. तो दिस इज जनरल बेसिक एरीज की ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कुछ टीम लीड कर रहा है एंड ही इज डूइंग वेरी गुड, तो यू कैन से कि इसका जो है ना ये एरीज वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इसका कहीं ना कहीं जो वो 1 नंबर कहाँ पे भी लिखा होगा ये स्ट्रॉन्ग है. एंड Okay, let's एरीज, continue. yeah, so Aries is ruled by Mars, Okay. like that. And they get hyper, they get angry very easily because वो रैम्प का साइन है, एनिमल का थोड़ा चीज है. देन ये सब चीज आने से थोड़ा सा यू गेट ईगोइस्टिक. और जब ईगो आता है ना सबसे फर्स्ट रिलेशन में दिखता है, तो दे गेट डोमिनेंट इन रिलेशनशिप्स. Okay. So this is a small thing about Aries. Okay. Let's talk about the other zodiac signs. Okay, then our second zodiac is Taurus. Now, Taurus is the most reliable sign amongst all the zodiac signs. Okay, they are very grounded people. These Taurus peoples, they love things to do very minutely. They are very detailing people. They see each and every details. Taurus would be in Hindi Vrishab, right? Vrishab Rashi. Yeah, sorry, I Okay. didn't mention that. Taurus No, is Vrishab. They are the most luxurious amongst all the zodiacs. They love luxury.
They Okay. love luxury and they love to spend only on brands. ऐसे चलते फिरते कुछ भी लेना करना उनसे नहीं होता. एक चाहिए लेकिन बेस्ट चाहिए. उनका एटीट्यूड वैसा रहेगा. कोई भी चीज देखेंगे दे वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. So, Okay. and they tend to get into toxic relationships too easily. If we see Taurus people, they have patience. लेकिन relationships में ups and downs देखते ही हैं वो. Let it be any kind of relationship. As I told, they are very particular. तो इनको neatness का बहुत कीड़ा है. They have that OCD problem. Like they want everything to be placed जहाँ है वहीं place रहना बहुत जरूरी है. They want best of jewelry. They want best of brands, as I told. Then they get too comfortable also. Because जब हर चीज आपको बहुत अच्छा मिलता ना, आप इतने कंफर्टेबल हो जाते कि आपको कभी कुछ अपॉर्चुनिटी लेना है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत टाइम लगता. और जब तक वो सोचेंगे, जब तक वो अपॉर्चुनिटी चले जाती. Okay. So these are the few traits about Taurus. They are possessive, they are jealous, and then फिर जब आगे वाले को देखते, just because they are brand conscious, आगे वाले को देखेंगे कि भाई उसके पास ऐसा ब्रांड है, तो थोड़ा सा वो jealousy भी आ जाता, greediness भी आ जाता. Then the third sign is Gemini. Gemini is known as Mithun in Hindi. If you see the Gemini sign, no, it's a symbolize of twins, twin pair, a boy and a girl. So we can say Gemini are the most expressive amongst all zodiacs. They have both masculine and feminine qualities because boy or girl दोनों sign है उनके इसमें. तो Gemini people are good with communication. So as we spoke earlier about communication, I can say your communication skill is good. तो मतलब आपका जो Gemini है वो planet Gemini is good placed in your chart. ऐसे Okay. you can connect things. They are multitasking. Gemini people are multi-talented. They love to giggle. They never show कि उनको tension है, stress है life में. No, they are always happy-going people. उनको देख के आप कभी नहीं बोल सकते कि इसके life में कभी दुख भी है. They take it that way. They take life that way. So Gemini people, they are very practical. कि मेरा है, whatever is it, मेरा stress है, I will handle. क्यों दुनिया को बोलना? उनका attitude वैसा रहता. They like showing, they love sharing their happiness, but they don't like sharing their bad things or Problems and everything. Problems, how they are feeling low and all those things. They are very calculative. And you know, Gemini people always have a habit of writing. मतलब हर चीज लिखते रहेंगे. उनको लिखने की आदत है. जैसे आजकल तो टाइपिंग वगैरह है या वॉइस नोट्स है. No, these people you will find with pen and paper. They are always calculative and हिसाब तो भाई, my God, for example, expenses they will write for sure. So Gemini people, they hate detailing. They hate detailing. They just see ऊपर का चीज़ें हो गया, लेकिन minute details में जाना they don't like. They get bored very easily. So these are few things of Gemini. And Gemini people, if you see people who travel, so they have कि नहीं मेरे को ocean के पास पसंद, मेरे को वैलीज पसंद, मेरे को माउंटेन्स पसंद, ऐसे. तो जो जेमिनी पीपल रहेंगे ना, वो यू विल सी इफ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी दे विल ट्रैवल टू ग्रीनरी प्लेसेस. दे वांट अ वेरी Close to nature. holiday. Close Yes, to nature. close to nature. तो they want good properties. They want relaxing वाला. उनको ट्रैकिंग वगैरह करो बोलो, they will never do. These are Gemini people for you. Then if we move on, we have the fourth zodiac, that is Cancer. Cancer is known as Kark also. Kark Rashi. Cancer, yes, Kark Rashi. Cancer is like, if you see the sign, it's a crab. Crab बहुत highly emotional. This we can say highly emotional amongst all the zodiacs. They have very motherly nature. They are very nurturing people. They are very soft-hearted. And they get affected very easily because they have that motherly nature thing कि अगर वो कोई मूवी देख रहे हैं और अगर उनका कुछ ऐसा सीन हो गया कि जहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, तो दे स्टार्ट क्राइंग विद दैट. एंड अगर कोई फाइटिंग वाली मूवी देख रहे हैं तो दे विल बी लाइक, ओ माय गॉड, प्लीज स्टॉप इट. It's like that. They get into things so easily. They get involved.
मतलब उनको लगता नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, मैं ऐसे कर लूं, मैं ऐसे कर लूं. इजीली They, इन्फ्लुएंस्ड बेसिकली. yes, easily influenced. They love to help. एंड दे डोंट एक्सपेक्ट कि आगे वाला रिटर्न में कुछ देगा या हम्म. नहीं देगा, बट दे लव टू हेल्प. दे आर वेरी इजी गोइंग, दे आर अमेजिंग at their what do you say, convincing people, हम्म. comforting people. They are amazing at it. And then cancerians are very intuitive also. वो लोग जो सोचते ना वो होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन कि कभी कभी घर पे बड़े हैं या मम्मा लोग हैं, जैसे मुझे लगा था आज ये ऐसा होएगा बोल के. सो दैट हम्म. इंट्यूटिवनेस इज वेरी स्ट्रांग इन अ कैंसर पर्सन, in a cancerian. And the areas what they like to go is all around ocean. Like they love to go to Goa, they like beachside properties, they want water ओके. bodies around them. तो काफी ओके. चीजों से भी you can say कि ठीक है ये person का ये quality matches that zodiac. नेक्स्ट. The next one is Leo. Leo is the fifth sign and it is Siha. Okay, so Leo is symbolized by a lion, as everyone knows. And lion है क्या? राजा है, जंगल का राजा है. वैसे ही Right. Leo is the king of all the signs. They are most courageous. They have the अलग different charm. They are the center of attention. When you go in a group, there's one person कि वो आएगा तो सब attention देंगे, या you just एक glimpse देते हैं. उसका Leo बहुत strong है. He is a Leo Okay. kind of a person. They are natural born leaders. They enjoy expressing themselves. It is always me, me, me. उनके हर बात में वो मैं रहता ही है. हम्म. तो लियो पीपल के थोड़े ऐसी चीजें रहती कि ठीक है जो ज्यादा मैं कहता मतलब हाँ ठीक है ये लियो के आसपास वाला ही बनता है. दे हैव वेरी हाई ईगो ऑल्सो. दे कैन डू टीम वर्क एंड इंडिविजुअल वर्क लाइक लीडरशिप. दे कैन मैनेज बोथ द थिंग्स वेरी नाइसली. अगर उनको सिर्फ एक सोलो प्रोजेक्ट दे दो कि सिर्फ तुमको करना है, नॉट हैविंग अ टीम, दे विल डू वंडर्स. एंड इफ यू टेल देम कि नहीं तुमको टीम में वर्क करना है तो वो काम करवा लेंगे, करेंगे कम करवाने में. They are very nice, Leo people. Okay. They hate being controlled. They are very disciplined. And these people, they love going, as you know, कि सिंह है, lion है, तो they love being within the forest. Again, So- connected to nature. Yeah, not connected to the nature, connected to animals. तो 5 तो हो गए. Now the 6th, ये जो 6th है 12 का बीच का है, तो this is a very nice soft sign. This is Virgo. Virgo is known as Kanya in Hindi, Kanya Rashi. It is symbolized by a young girl, if you see. So these people are the perfectionist amongst all the zodiacs. You can call them a perfectionist. They are very practical, they are analytical, they love detailing, they enjoy organizing and planning things. There are few people who love to organize parties. For example, event planners. If you see them, they are so fine with the detailing कि नहीं इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखना है. They are creative also. तो उनका जो वर्गो है वो इम्पैक्ट है उन पे वर्गो का. Okay. तो zodiacs which are ruled by Virgo, they have these things of detailing. They are very good cooks. They are simple people. उनको हाई फंडा वगैरह कुछ नहीं पसंद. They are very neutral, very simple people. They have a strong desire to serve and improve themselves. उनको हमेशा रहता है मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं, कुछ ना कुछ नया सीखूं. They are always into the learning procedure. Okay. Now our next zodiac is Libra. 7th. Yeah, the 7th one is Libra, which is also known as Tula Rashi. Tula Rashi, if you see, it's a symbol of a lady catching a scale. तो scale कहाँ दिखते generally? In the courts, balancing things. Right. So this is the most balanced sign amongst all zodiacs. They are very sweet, they are patient, and they are peace loving people. इन लोग को झगड़ा पसंद ही नहीं. अगर इनके सामने झगड़ा है वो लोग जाके they will sort it out कि leave it, क्यों बढ़ाना है, क्यों करना है, वो किसी के झगड़े में पड़ेंगे नहीं.
दे आर वेरी ओके। बैलेंस, लेकिन इतना बैलेंस रहता ना कि कभी कभी बिजनेस में उनके प्रॉब्लम्स होते, क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स देखते, तो डिसीजन लेने में दे गेट डिलेड ओह! बिकॉज दे आर कैलकुलेटिंग द प्रोज एंड ओके। कॉन्स। तो हाँ, हाँ, हाँ। बिजनेस डिसीजन लेने में बहुत डिले कर देते, एंड देन फिर अपॉर्चुनिटी कम आती, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो जस्ट रन लाइक दिस, यू नीड टू ग्रैब इट। तो Libra people are very family people. They love socializing. It is not socializing amongst the friends or having too many हुँ, friends, हुँ। but they love being in the family. बोलते ना ओके, बहुत लोग अपने घर को लेके चलते, रिलेशंस को राइट। लेके चलते, वैसे है लिब्रा पीपल। सो दीज पीपल, they love to explore cities, they love to, they are adjusted, so they love to travel, they tend to travel more हुँ, oftenly. So who is a good meditator, you can say, has Libra quality people have meditation wala, they need peace, calm। तो फिर ऐसा रहते लिब्रंस, एंड देन बस वो एक ही है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आई वुड से इज अबाउट द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स, दे जस्ट ओके। लूज अपॉर्चुनिटीज जो उनको मिलते comparatively to all the हुँ, things। हुँ। They get opportunities, they get many opportunities, but they don't grab it because of their fairness nature and justice nature। So अंडरस्टूड। these are Librans for you। Then the eighth sign is the Scorpio, which is also known as Vrishik Rashi। The वृश्चिक राशि इन Scorpio, हिंदी। yeah, Vrishik। Scorpio नाम सुन के अजीब सा लगता, but these हुँ, people are too passionate, they are too intense about their work, they are too passionate, they are too mysterious also। You can't say कि ये स्कॉर्पियो के दिमाग, स्कॉर्पियो पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि दिमाग में कुछ चलता है और बोलता कुछ और है। हुँ। तो यू कांट सी कि वो एग्जैक्टली है कैसा पर्सन। सो दे आर टू मिस्टीरियस, इमोशनली दे गेट अफेक्टेड, बट दे नेवर शो द इमोशंस। they just show कि मेरे को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, इट इज हुँ, ओके, लीव इट, बट दे गेट अफेक्टेड, they don't express themselves, they are ओके। very secretive। एंड अगर स्कॉर्पियन लोग के साथ अगर आप कुछ गलत कर दो, देन जस्ट बी रेडी, आपको वापस मिलेगा वो, लेकिन नॉट ऑन इंस्टेंट बेसिस, दे विल प्लान एंड देन दे विल फायर ऑन यू। तो पंगा ओके। तो भाई स्कॉर्पियन पीपल, वी शुड नेवर टेक पंगा विद दिस स्कॉर्पियन पीपल्स। they like to be around hills area, they like valleys, they like hills, so they like all those things। Water, no, they are scared of water, they cannot forgive easily। कोई भी बात उनको हर्ट हो गई तो लेके हुँ, बैठेंगे हुँ। जरूर, बट दे आर वेरी लॉयल ऑल्सो। इतने लॉयल हो जाते ना रिलेशनशिप्स में कि आगे वाले से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाता। ओके। स्कॉर्पियन पीपल्स आर नाइस, बट बस पंगा मत लेना, वही एक लाइन है उनके लिए, व्हाट आई वुड से। The ninth sign is Sagittarius, which is also known as Dhanu, Dhanu Rashi। So this Dhanu Rashi is symbolized by half human and half horse। If you हुँ, see the sign, it's half human and half horse holding a bow and arrow। Bow and arrow रहता है उनके हाथ में। तो ये Sagittarius people are the blessed and luckiest among all the zodiac signs। These ब्लेस्ड people इन are द सेंस? ब्लेस्ड। ब्लेस्ड ब्लेस्ड इन मतलब द सेंस? ये लोग, ब्लेस्ड मतलब ये लोग जो सोचते वो हुँ, लोग होता, दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड, इनके साथ कभी गलत नहीं होता। ओके। ये लोग जो सोचते वो काम होता, दे ऑलवेज हैव दे ब्लेसिंग्स। दे, उन लोग का जो लक, इतना लक स्ट्रांग रहता हुँ, सैजिटेरियंस का कि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डालना है एंड देन एवरीथिंग इज योर्स। दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, दे लुक वेरी मेच्योर्ड। जैसे बहुत भी सी है ना कि अरे ये एज से छोटी दिखती, ये हुँ, एज से हुँ। थोड़ा बड़ा दिखता, तो सैजिटेरियस पीपल यू दे लुक वेरी मेच्योर, मतलब उनके एज से ज्यादा ही दिखेंगे वो आप। ओके। They are very well educated also, they love to study। Sagittarius people, they love to study, they are हुँ, हुँ, knowledgeable, और उनको नॉलेज शेयर करना भी बहुत पसंद। what they don't like is if we restrict them कि नहीं, हुँ। don't do this, if we keep any terms and conditions, they will not work with those things।
तो they hate restriction. They are very enthusiastic. उनका enthusiasm, if you see, you will be like, oh my god, what a person. मतलब ये एज में इतना करना is just too good. तो Sagittarius का ये थोड़ा सा है. And they love adventure. तो anything, let it be trekking, anything, Sagittarius लोग दिखेंगे आपको आसपास. Okay. Then our 10th sign. Our 10th sign is Capricorn, known as Makar sign. Makar Rashi in Hindi. It is symbolized by a goat and a crocodile. अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको गोट भी दिखेगा और क्रोकोडाइल भी दिखेगा. ये लोग वी कैन से दे आर द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट अमंग द जोडियक. ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते. छोटी रहने दो, बड़ी रहने दो, दे नेवर स्केल थिंग्स. उनको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए. और अगर आज उनको एक प्रोजेक्ट मिला और कल वापस मिलेगा, दे विल ग्रैब दैट ऑल्सो. कि क्यों जाने दे. मैं आज और कल भी बहुत दूर बोल रही हूँ. अगर सुबह एक मिलेगा और शाम में एक मिलेगा ना, दे विल टेक बोथ द प्रोजेक्ट्स. अब ये गड़बड़ में उन लोग का जो टाइम रहता प्रोजेक्ट फिनिश करने का, दे गेट डिलेड इन दैट बिकॉज टू मेनी थिंग्स. दे लव टेकिंग टू मेनी थिंग्स. तो कंप्लीशन में इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर देम टू कंप्लीट. They will take up more than they can deliver. Yes. Okay. They struggle in delivering things. Yeah, this is the right way of keeping. They are forever on high rise because as they are opportunist, they know what to grab, how to do. They are always at a high rise, better than yesterday. आज एक काम खत्म करें, finish it. Next जो भी करेंगे ना उससे ज्यादा अच्छा करेंगे. So they put the 100% into what they do. Let it be relationship, let it be work, let it be project, anything they give more than 100%. कभी कभी इतना देते कि अगर वर्क ज्यादा है, अगर आप वर्क को 100% दे देना, फिर रिलेशन बैलेंस करने प्रॉब्लम होती. They can't balance easily. They are always into one thing with 100%. So that's the plus and minus point, both. This is Capricorn and they love water areas. Capricorn people love water areas. Our 11th sign, that is Aquarius, known as Kumbh. So this is a symbol of a human holding a pot of water. The pot of water, when you see the symbol, no, it is like wow. मतलब एक अलग ही शांति मिलती है उनको देख के. You find peace in them. These people, you can say, they are most humanitarian among all the zodiacs. Okay. And they are trendsetters. Kumbh people, Aquarius people, they are trendsetters. They can't be followers. They love doing something different. They love doing social causes. They value freedom. They don't like to tie down to rules. They love to, break rules. मेरे को ये काम करना है, मेरे को कैसे भी करना है, by hook or by crook. That is Aquarius for you. They have a very different vision ideas. जो जहां अपनी सोच खत्म होती है और उन लोग की शुरू होती. We can say that. Okay. They think a lot. They are too practical and they see the pros and cons. The Aquarius people are very nice, very intuitive and humanitarian nature also. So now also overthinkers? Also overthinkers? Yes, we can say overthinkers, but they know to balance the things. मतलब overthinking सिर्फ extreme में जाएंगे. Okay. लेकिन जब काम करना रहेगा ना, वो बैलेंस करेंगे. Okay. Thinking is different and doing is different. Right. Now our last zodiac is Pisces, which is known as Meen Rashi. This symbolizes of two fishes tied together. They are not separate, they are tied together. Pisces people are the most intuitive amongst all the zodiacs. Intuitive मतलब ये अगर आपको ऐसी बातों में भी बोल दिए ना कि तेरा ये काम हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा. इनको सोच के बोलने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ बातों में कुछ भी बोल देंगे, ये हो जाएगा. कभी गुस्से में बोलते अरे क्या, व्हाट नॉनसेंस, या इवन यू विल फेस दैट. तो दैट हैपेंस. इट इज नॉट ओनली गुड, so it is both side, good and bad. तो कभी कभी this थोड़ा रिवर्स जाता है. They need to just think and talk.
इफ यू ओके। वांट टू से अ पाइसेस कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा, उसका अगर आप देख रहे हो कि पाइसेस स्ट्रांग है तो उसको बोल दो भाई तू सिर्फ सोच समझ के बात कर, माप तोल के बात कर, सोच समझ के बात कर। हम्म। दे आर नेवर सेल्फिश और डिमांडिंग, दे लव शेयरिंग। लेकिन कोई भी चीज डिटेल में जाना इनको बहुत पसंद। कुछ प्रोजेक्ट दे दो, दे विल गो टू द डेप्थ। आप कोई रिलेशनशिप में, दे विल लव टू द कोर। देयर कमिटमेंट इज टू गुड। पाइसेस का एक ही चीज है, द कमिटमेंट, द क्रिएटिविटी एंड द हम्म। इंट्यूटिवनेस is too good, which no other zodiac signs have. They love exploring things. They, उनके own emotions भी वो लोग कभी हम्म। कभी समझ नहीं पाते कि what's going on. तो they are not that expressive, but बोलने में थोड़ा सा they need to be careful. What they are talking, they need to be careful on it. Okay. So these So are with the that, zodiacs. Yeah, we हमने completed the we zodiac. cover the zodiac signs. So what's next on Kundali? You mentioned something about the houses. Yeah. House थोड़ा सा explain करेंगे होता क्या है? What is a house? As I told that we are governed with 12 houses. First house Right. is yourself. Second हाँ. house you can say is your wealth. हम्म. Third house is about your communication. Fourth house is Okay. your mother house or property house. Then fifth house is your education, your children. The sixth house is about your job, about your small things what you see. आपकी छोटी छोटी बीमारी, खांसी, सर्दी वगैरह जो होता है, तो वो आप सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं। सेवेंथ हाउस इज अबाउट योर पार्टनरशिप, अबाउट योर हस्बैंड। एंड एथ हाउस इज अबाउट योर इन लॉज, बिकॉज वो आपके हस्बैंड का नेक्स्ट घर है, तो इट इज अबाउट योर इन लॉज, बट इट इज अबाउट योर नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। इट गिव्स इन पॉजिटिव साइड, इफ यू सी, इट गिव्स यू इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। नेगेटिव साइड में वो आपको हेल्थ पे बहुत ट्रोल करता है, आपके कैरियर में बहुत ट्रोल लेता है। Okay. 8th house is that. 9th house is of your father house, तो आप आपके फादर के लिए देख सकते हो, आप आपके ब्लेसिंग्स देख सकते हो 9th हाउस से। 10th house is all about your career. So you see all about your career, your father-in-law, your in-laws, your mama, everywhere from your 10th house. Then 11th house is your blessings. तो 11th house में is आप जो देते हो, करते हो, जो आपको रिटर्न में मिलता है, is your 11th house. Okay. And 12th house is about your moksha, about hospitalization, about your foreign journey, about your foreign education. तो these are the small things where we can see. इसमें और डिटेलिंग भी रहता है, लेकिन majorly these are the things. Okay. So houses का इम्पोर्टेंस बेसिकली है आपके लाइफ में जो जो चीजें चलती हैं, आपके जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग मतलब घरों में, हाउसेस में हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? Yes. नाउ सपोज जो मेरे इससे पहले मैंने जब हम जोडियक साइन की बात कर रहे थे उससे पहले एक मेरा एक सवाल था कि वन थिंग यू मेंशन्ड कि जैसे जुपिटर और राहु, सॉरी, सन एंड राहु कैन नॉट गो टुगेदर, तो ऐसे और कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो खराब, जिनको हम कह सकते हैं? Sun and moon is not a good combination. Okay. Saturn and moon is not a good combination. Mars and Saturn is not a good combination. And moon Rahu, moon Ketu, sun Ketu, sun Saturn, this is not a good combination. Rahu Ketu जो रहते ना, they are always on 1 and 7 difference. Like अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो केतु कैसे भी 7th हाउस में ही रहेगा। Okay. तो वो उन लोग साथ में कभी नहीं रहते, राहु केतु कभी साथ में नहीं रहते। सैटर्न राहु इज अ बैड कॉम्बिनेशन। सैटर्न केतु इज बैड फॉर योर प्रोफेशन, फॉर योर कैरियर, फॉर योर ग्रोथ। दैट सैटर्न केतु इज ऑल्सो इन वैदिक इज नोन एज अ लॉक योग। तो दैट लॉक्स फॉर सम पीरियड, दैट लॉक्स योर योग। जैसे you've heard of Raj Yoga, you've heard of many yogs. वैसे तो these are few combinations which are not good. उसके रेमेडीज भी कर लो, लेकिन उसके इफेक्ट्स तो रहेंगे।
सी एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज नहीं है कि आप रेमेडी कर लो, आप कुछ नहीं होएगा। अगर आपको समझो, अगर आपके चार्ट पे हेल्थ इश्यू दिख रहा है एंड इफ यू डू दैट रेमेडी, उसका ये मतलब नहीं दैट यू विल नॉट फेस द हेल्थ इश्यू, यू विल फेस इट, बट जोर का झटका धीरे से लगता। ओके, टू मिनिमाइज द इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। यस। ओके, और जब किसी चीज को अच्छे की हम बात, जैसे अगर मेरे, जैसे हम इससे पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यू मेंशन कि इफ यू हैव इवन 1% ऑफ डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन प्रोबेबली विथ रेमेडीज इट कैन बी, थोड़ा हम उसको कैटलिस्ट की तरफ पुश दे सकते हैं। यस, बट दैट कांट बी, अगर वो आपके कैरियर फ्रंट में नहीं दिख रहा है मेरे को, तो दैट कांट बी योर कैरियर। वो आपका साइड जॉब हो सकता है, आपको साइड बिजनेस दिख अंडरस्टूड, सकता है, बट वो आपका अंडरस्टूड। मेन कोर नहीं रहेगा। ओके। You've seen many people changing their jobs, changing their businesses. सब प्रॉफिट लेके, थोड़े बहुत प्रॉफिट लेके चेंज करते बिजनेस, थोड़े बहुत लॉस फेस करके चेंज करते बिजनेस। एंड आप शुरू से ही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लेके, इफ यू गेट इनटू दैट बिजनेस, नो, यू विल नॉट फेस दोस थिंग्स, you will not face that much of difficulties. So how do I know if podcasting is right for me? For that, I need to check your Mercury, I need to check your Sun, because as I told Okay. you, Mercury is your communication, Sun is your confidence. Then I need to see your Jupiter also, that how well you are doing, because Jupiter is of knowledge. So there are many combinations. Or broadcasting is majorly on your phone, on YouTube, on a technology. So Rahu Right. is the karak of technology. So I need to check your Rahu first. कि Okay. अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो आपका ये जो पॉडकास्टिंग है, दैट विल गिव यू अ गुड मूव, दैट विल गिव यू गुड प्रॉफिट, दैट विल बिकम अ प्रॉपर कैरियर फॉर यू। तो Okay. राहु स्ट्रांग रहना भी जरूरी है। एवरीथिंग हैज द प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। सो Right. वो पूरा स्टडी करके वी कैन से कि ठीक है, आप ये टाइम पे आप ऐसा काम करो तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। Okay. So let's talk about the planets now, and what role do they play. So planets, जब हम normally planets की बात करते हैं, जो हम 9 planets हम बात कर रहे हैं, which includes your Neptune, Uranus, and Pluto and everything. doesn't include. हाँ, नहीं, मैं normally जब हम पढ़ाई के बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं, as per the academics. Now when it comes to astrology, तो हम सन और मून को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एंड देन वी आर एक्सक्लूडिंग दीज द लास्ट 3 मैंने बोला, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो। Yes. व्हाई इज दैट सो? तो हम फिर जब हम एकेडमिक्स भी पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से क्यों नहीं पढ़ते? एकेडमिक्स में आप एस्ट्रोलॉजी कहाँ पढ़ते हो? आप सोलर सिस्टम पढ़ते हो। हाँ, नहीं, सोलर सिस्टम, तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी में हम इनको एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्या इनका रोल नहीं रहता है? इनका रोल भी रहता है, प्लूटो, यूरेनस और नेपट्यून का भी रोल रहता है, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके, इट्स पर्टिनेंट टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हम उसको एक्सक्लूड दिस इज पर्टिकुलरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो एंड इंडियंस, एज इंडियंस we tend to go to पंडित, we go to astrologers, तो वो लोग जनरली वैदिक ही देखते हैं, बिकॉज ये सबसे पुराना है, वैदिक सबसे पुराना। ओके, let's talk about the planets a bit, कि किसका क्या रोल रहता है। Like we've talked about 9 planets. Our very first planet is Sun. Sun, as I told you, is only one. और Right. Sun रोशनी देता, वो किसी की रोशनी लेता नहीं, वो रोशनी देता। तो जिसका सन स्ट्रांग है वो रोशनी देगा। They will spread the knowledge. They will spread their smile also. तो सन रिप्रेजेंट्स योर सेल्फ, योर ईगो, योर आइडेंटिटी। अब जो ट्रेड्स है ना, सन गवर्स योर कोर पर्सनैलिटी, योर विल पावर, एंड एज आई टोल्ड यू, ईगो, योर सेंस ऑफ पर्पस, कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, इज सेंस ऑफ पर्पस। तो दैट इज रूल्ड बाय सन। इट सिंबलाइजेस योर विटैलिटी, योर सेल्फ एक्सप्रेशन, योर क्रिएटिविटी। अब आप क्रिएटिविटी सिर्फ वीनस या सिर्फ मर्क्यूरी से नहीं देखोगे, आपका सन भी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को लाइट तो चाहिए ना, नहीं तो आप सिर्फ करते रहो, व्हेन देयर इज नो लाइट, व्हाट्स द यूज?
So sun symbolizes creativity also. It reflects your true nature. Your leadership qualities are seen from there. How confident you are. How are you presenting yourself to the world? How Okay. ambitious you are. Your pride. You can say government. अगर आपको गवर्नमेंट देखना है, अगर Hmm. आपको लीडरशिप देखना है, इफ यू वांट टू सी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, तो सन प्लैनेट देखना बहुत जरूरी है. So now the next planet is moon. Hmm. अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी मून, हाउ इज मून? एक दिन फुल रहता, एक दिन नो मून रहता, एक Right. दिन छोटा रहता, एक दिन बड़ा रहता. तो Hmm. दैट इज अ मूवमेंट ऑफ इमोशंस. समटाइम्स यू आर इन अ गुड मूड, समटाइम्स यू आर इन अ बैड मूड, समटाइम्स मेनी पीपल आर मूडी. तो आप देखो कि उनका मून कहीं अफेक्टेड है, इसलिए Hmm. शायद Hmm. वो लोग मूडी है. Okay. सो मूड स्विंग्स मून से देखते, इमोशंस देखते, इंस्टिंक्ट देखते. योर लिक्विड कैश इज सीन बाय मून, योर इनर सेल्फ इज सीन बाय मून. इट रिप्रेजेंट्स योर इमोशनल रेस्पॉन्सेज, योर हैबिट्स, कि आपके क्या रेगुलर हैबिट्स है, योर फीलिंग्स, ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, ऑल अबाउट लव इज सीन विद मून. It symbolizes like a comfort, a security, like we are so Hmm. secured with our moms कि कुछ भी हो जाए मम्मा है देख लेंगे, डांट नहीं पड़ेगी, बचा लेंगे मम्मा. तो इट Hmm. इज मून. बिकॉज मून से आप मादर भी देखते हो, तो मादर Hmm. का जो नेचर रहता है वो मून का भी रहता है. तो इट रिप्रेजेंट्स योर रिलेशनशिप विद होम, विद फैमिली, विद योर कोलीग्स, with your unknown Okay. people also, like how do you behave with your unknown people, that is So more also. about your emotional quotient. Yes. Okay. उन अगर आपका मून अच्छा है तो आपके लाइफ में लिक्विड कैश की कमी नहीं रहेगी, Hmm. Hmm. जो आजकल शायद बहुत टर्न हो रहा है इनटू कार्ड्स, इनटू जीपेज. सो मून इज ऑल अबाउट दया भाव, अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड. Hmm. Basically it's us. And moon is too much attachment also. So this is Okay. about moon, about your love, about your heart, about your sukh, about your peace. So this is moon. Then if we go to the next one is Mercury. Mercury is all about communication. It is all about your intellect. It is all about reasoning. Aisa kyun? Why? What? Okay. How? This everything represents Mercury. Mercury is all about calculations. As I told, Mercury is very calculative. So Mercury is all about calculations. They symbolize logic. They symbolize like information exchange. They love doing that. अगर आपके पास कोई Facts, figures, information, science. yes, Okay. all related to math. Hmm. उन लोग का Hmm. Hmm. मैथ बहुत अच्छा रहेगा जिसका मर्क्यूरी स्ट्रांग है. Okay. They are good at the decision making skills. Their mental thinking is very strong. They are very curious. जैसे I told कि कब क्यों. They are Hmm. very Hmm. quick thinkers also. Like if we are into a conversation और बीच बीच में जो बहुत questions पूछते, बोलना ये इसका मर्क्यूरी बहुत strong है. मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स योर स्किन ऑल्सो इन Hmm. एस्ट्रोलॉजी. तो कभी किसी को अगर स्किन प्रॉब्लम वगैरह है तो उनका मर्क्यूरी प्लैनेट या तो ट्रांजिट में खराब है या उनके कुंडली में खराब है, Okay. वैसा. एंड मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट योर मैथ, अबाउट योर नॉलेज. देन द नेक्स्ट प्लैनेट we move is Venus. Venus represents love, beauty, and relationship. Venus is also known as Shukra in Hindi. It Yeah. governs your approach to love, romance, and partnership. Okay. तो जनरली अगर आप शादी का देख रहे हो तो लड़की की कुंडली में आप वीनस देखते कि वो कैसी अच्छा. है. अगर मेरे को आपकी कुंडली में देखना है तो मैं देखूंगी कि Hmm. आपकी वाइफ दैट इज गवर्न्ड बाय वीनस कि वो कैसी है, हाउ इज शी, हाउ Hmm. इज her नेचर. All that is seen with planet Venus. It is associated with charm, attraction. How are you handling your social interactions? How are you handling your friendships? And Venus is all about creativity also, the artistic things. Venus Okay. is all about luxury.
तो हर चीज जिससे आपको सुकून मिले मेटीरियलिस्टिकली इज वीनस. बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खूबसूरत बीवी, गुड रिलेशनशिप्स, bunch of friends, everything is Venus. ओह, सो मून पे भी हम लिक्विड कैश की बात कर रहे हैं, वीनस में भी हम प्रोस्पेरिटी की Venus बात कर is रहे not cash. You can say your bank balance. हैं. ओके, ओके, ठीक है. Moon is a proper liquid cash, and Venus is your bank balance. नेट वर्थ, प्रोस्पेरिटी और बैंक बैलेंस, मतलब उस पे हम Yes, उसको अटैच कर सकते standard of हैं. living. हम्म. All that is Venus. Venus is about your looks. How do you look? How do you carry yourself? हम्म. Everything related to materialistic is Venus. So let's take an example. जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, राइट, दे आर गुड लुकिंग, दे हैव मनी. सो डज इट विल इट बी राइट टू से कि इन सबका वीनस या तो स्ट्रांग है और दे हैव, अगर वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, देन दे विल, द एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट फोकस ऑन देयर वीनस, क्योंकि उनका जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो उनके लुक से ही सबसे ज्यादा मैटर करता है. Yes, yes. ओके, आप कोई भी खूबसूरत चीज को देखो, उसका वीनस स्ट्रॉन्ग, जहां ओके. पे आप देख के इट इज लाइक वाओ. और हम्म. और इफ यू, इट इज लाइक कि आपके दिमाग में है कि मैं एक बार और पलट के देखूं उसको, तो हम्म. दैट इज अ साइन ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वीनस. ओके. Anyone living into a too comfortable life is having a strong Venus. हम्म. Our next planet is Mars. Mars is all about action, energy, aggression, desire. तो जो आपके पुलिस वाले हैं, जो आपके नेवी है, जो आपके फाइटर्स है, जो व्हाट डू यू से डिफेंस फोर्सेस. WWF जो भी है, इन लोग का मास बहुत स्ट्रांग रहेगा. ओके. सोल्जर्स है. आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, लैंड इज सीन बाय मार्स. It governs your drive, your ambition, your determination to pursue goals. And it is, Mars people are very passionate. Aggression, competition, your sexual desire is seen by Mars. It is all about strength, about courage. क्योंकि पुलिस वाला हर कोई नहीं बन सकता. They need Right. that courage, they need that strength. So Mars is all about a solid thing. Like Understood. property is again a solid thing. Liquid cash is different, your bank balance is different, and your Right. property is different. So this is Mars for you. Then our Okay. next one is Jupiter. Jupiter is growth, expansion, luck. अगर आपका जुपिटर सही है तो आपके साथ कभी गलत नहीं होता. You will not face the worst time in your life. You will face hurdles, but not the worst time. That is why people say ना कि आपका जुपिटर अच्छा रखो, because Jupiter in Hindi if you say see it is Guru. तो गुरु क्या है? Guru is all about knowledge. It is all about learning. It is all about your wisdom, your optimism. आप कभी कोई गुरु को देखेंगे नहीं नेगेटिव बोलते हुए. They are always optimistic. They reflect moral values. They reflect generosity, the philosophical beliefs, abundance, success, expansion. This is the various aspect of life which Guru governs it. Jupiter governs it. Your travel, your exploration, your new opportunities is Jupiter. So Jupiter is all about the right and wrong, about the truth, about your soul, about education, about dedication, about luck, about blessings. Everything is Jupiter. Our next planet is Saturn. Oh my God, also known as Shani. जो लोग देख के सुन के डर जाते. But Right. I would say शनि या सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है. Saturn doesn't need anything. It just needs discipline. It needs good karma. It needs structure, responsibility. अगर आप आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ले रहे हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप डेली आपका एक रूटीन फॉलो कर रहे हो ऑन टाइम,
and if you are hardworking, Saturn will give you. It is a slow and steady planet because आप solar system में भी Saturn is the last planet. It is the Right. farthest. तो जब भी वो देगा ना, देरी से देगा, लेकिन जो भी देगा permanent देगा. Okay. And Saturn, it reflects your sense of duty, your authority, your personal boundaries. It symbolizes your limitations, your restrictions, your life lessons, your karma. जो आप challenges से सीखते हो, that is Saturn. So Saturn is also known as a karma planet. It is associated with your maturity, क्योंकि गलती से ही सीखते. Yeah. ग्रो कर करके मेच्योरिटी आती. तो इट इज ऑल अबाउट मेच्योरिटी, अबाउट पेशेंस, अबाउट अचीविंग सक्सेस थ्रू एफर्ट. सैटर्न डजंट गिव यू इजी मनी. अगर आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, आप शेयर्स में नहीं कर सकते. दैट विल नॉट गिव यू इजी मनी. जो आप हार्ड वर्क करोगे, जहां आपका दिमाग ज्यादा चलता है, जहां आपकी मेहनत लगती है, इट इज ऐसा नहीं कि कोई बोला आपने पैसे डाल दिए छोड़ दिए, नहीं. जहां आपका हार्ड वर्क लगता है ना, वहां पे सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग. So it is all about discipline, all about disciplinary planet. Now if we come to Rahu, Rahu is full of illusion. आज का generation is full of Rahu. We are connected through Rahu. It is all about technology. It is all about obsession also. With worldly desires. मतलब राहु क्या है, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, टेक्नोलॉजी जैसे पूरा अप टू डेट रहना चाहिए. इट इज ऑल अबाउट वर्ल्डली डिजायर्स, अ ऑब्सेशन. इट इज ऑल अबाउट योर मटेरियल अचीवमेंट्स. अगर आपको एजुकेशन से अच्छा जॉब मिल रहा, अच्छा पे मिल रहा, योर राहु इज गुड. इट रिप्रेजेंट्स इल्यूजन. इट कभी कभी इफ इट्स इन अ नेगेटिव साइड, इट गिव्स यू टू मच ऑफ कंफ्यूजन. एंड कभी कभी जब वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है ना राहु, आपको अनएक्सपेक्टेड चीज दे देगा. इट इज सो सरप्राइजिंग समटाइम्स कि आप सोचते भी नहीं और आपको वो हो जाता आपका काम. तो दैट इज राहु. इट सिंबलाइजेस योर क्रेविंग्स फॉर सक्सेस, फॉर फेम, फॉर स्टेटस. बिकॉज सबको अपना अपना एक विजन रहता है. नहीं, आई वॉन्ट टू रीच दैट, आई वॉन्ट टू डू दिस एवरीथिंग. व्हाट योर थॉट प्रोसेस. जो हवा में महल बनाते, मतलब राहु खराब है. जो मतलब सोच के उस पे वर्क करते, दैट मीन्स राहु इज गुड. इट इज लिंक्ड टू टेक्नोलॉजी, इट इज लिंक्ड टू इनोवेशन, फॉर योर फॉरेन थिंग्स, फॉर योर ट्रेड, foreign trade. And it is often, driving a person to seek new experiences. Risk factor. राहु अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका रिस्क फैक्टर लाइफ में लेना बहुत एविडेंट दिखता रहता. यू लव टेकिंग रिस्क, यू लव डूइंग वेरी अनयूजुअल थिंग्स. So this is Rahu. And then the last planet is Ketu. Ketu is total opposite. If you see, there's a story about Rahu and Ketu. Rahu का सिर्फ सर होता है, if you see the symbol. And Ketu का सिर्फ the lower body and the tail. तो Ketu वाले, they are more into spirituality. They are more about detachment. They are more like शनि, like about karmic lessons. कि नहीं, अगर मैं ये करूंगी तो ऐसा होएगा. उनके थॉट में आएगा. जिसका केतु स्ट्रॉन्ग है, इन लोग को शोबिज नहीं पसंद. केतु जिसका स्ट्रॉन्ग है, they don't like showbiz. They are associated with the inner wisdom, the enlightenment. They desire to transcend the physical world. While Rahu is totally opposite. ठीक है. And Ketu, like for Saturn, you can see longevity also. Longevity or age, all that is seen by Saturn, the slowness. Ketu is all about irritation, detachment, individuality, aloneness. जो इंसान को अकेला रहना पसंद, मतलब उसका केतु इतना स्ट्रांग है कि वो मिंगल होने नहीं दे रहा. Okay. And in English, you can say that Ketu is also known as many people do say कि ये थोड़ा karmic lessons ज़्यादा सिखाता है. But according to my studies, according to what my gurus taught me, it is all about spirituality. अगर Jupiter और केतु साथ में बैठे, in our Vedic astrology we call it Guru Chela.
तो दैट इज नॉट अ बैड साइन. जुपिटर राहु बैठे तो दैट इज अगेन अ बैड योग, बट जुपिटर केतु इज नॉट अ बैड योग. ओके. So these are about the planets, about few things which is very important, which we हम्म. ignore and which we don't accept. अंडरस्टूड. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे ज्यादा अगर जो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, जैसे आपने भी बोला, विच यू आल्सो मेंशन, शनि. सो क्यों, व्हाई इज दैट सो? Because ये डर क्यों है? शनि छड़ी लेके ठहरता ना, जो आप कर्म करोगे उसका पूरा फल मिलेगा. हाँ. अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो यू नीड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. शनि इज ओके. फंडामेंटली अ ग्रह ऑफ डिसिप्लिन एंड टास्क मास्टर. सैटर्न लव्स टू गिव यू टास्क. आप वो कैसे करते हो वो देखना चाहता है. Will you leave it? Will you do it? It likes people who work hard. मेहनत जो करता है, that is Saturn. Saturn is known planet for your karma, and as I told, it's for discipline. Okay. So if Shani is weak or negative placed in one's horoscope, it can cause problems related to relationship. और अगर हेल्थ में देखोगे कि आपका शनि खराब है तो आपको हेल्थ में मेजरली क्या क्या रहेंगे, या तो वो बोन्स रिलेटेड रहेंगे, या टीथ रिलेटेड रहेंगे, या जॉइंट्स रिलेटेड रहेंगे, या स्किन रिलेटेड रहेंगे. ये चीजें थोड़े से शनि देता है अगर वो खराब प्लेस्ड है. हेल्थ वाइज में ये कहीं ना कहीं दिखता है. तो बट आई फील सैटर्न इज द बेस्ट प्लैनेट, क्योंकि एक तो ये जब देता है तो परमानेंट देता है. बाकी सब प्लैनेट्स दे के ले लेते, बट दिस इज द प्लैनेट जो देगा वो परमानेंट देगा. एंड अगर लेगा तो परमानेंट लेगा. यस. ओके. वो आपके कर्मा पे है. मैं काफी अभी आई कैन, मतलब आई कीप हियरिंग दिस कॉन्स्टेंटली ऑन द इंटरनेट दैट दिस पर्टिकुलर ईयर 2024 is governed by Shani, right? And there are a lot of stuff you'll find around that कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इस साल अगर आपने अपनी मेहनत की है, अगर आप अपना 100% से ज़्यादा दे रहे हो, this year will give you probably at the end of the year, next year you will get value out of it. Yes. What is the sense and the logic of this? See, as you calculate statement. 2024, it comes to 8. 8 is Shani. 8 का साइन आप ऐसे देखोगे तो राउंड 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 है, लेकिन आप ऐसे देखोगे तो इन्फिनिटी भी है. ठीक है. तो आप जो भी करोगे, आप खराब करोगे दैट विल बी मल्टीप्लाइड, आप अच्छा करोगे दैट विल बी मल्टीप्लाइड. तो द स्टार्टिंग मंथ्स इज शनि आपको टेस्ट कर रहा है कि आप क्या रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो. इट विल कैलकुलेट ऑल योर कर्मास, इट विल कैलकुलेट योर थिंकिंग. आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जो भी कैलकुलेट करके बाय द एंड इट गिव्स यू द रिजल्ट. एंड दिस इज द फैक्ट दैट सैटर्न गिव्स रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, अभी तो कलयुग है, तो भाई आज बुरा करोगे तो कल बुरा हो ही जाएगा आपका. बट इफ यू हैव हर्ड एल्डर्स टॉकिंग कि पिछले जन्म के कर्म, वी फॉरगेट दैट ऑल्सो इनटू इट. वो पिछले जन्म के कर्म अपने को काटना है, इसके लिए अभी इतना दुख है. मेनी पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि मैं तो मेरा पूरा लाइफ आई हैव डन सो गुड टू ऑल, मैंने इतना दान पुण्य करा, मैंने वो. आपने आपके आगे के कर्म अच्छे करे, लेकिन जो पीछे खराब है उसको तो आपको लेवल करना पड़ेगा ना. तो शनि इज ऑल अबाउट योर कर्मास, अबाउट व्हाट यू डू. ओके. एंड एक जो शनि से ही रिलेटेड मेरा अगला सवाल है थोड़ा, कि लोग बहुत ज्यादा इस बारे में डिस्कशन भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत लोग डरते भी है, जो विच इज कॉल्ड शनि साढ़े साती ऑफ शनि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. व्हाट एग्जैक्टली इज साढ़े साती ऑफ शनि? सी, साढ़े साती इज where your moon is placed in your birth chart, and शनि at present कहाँ चल रहा है, कौन से जोडियाक में चल रहा है, कौन से नंबर पे चल रहा है, वो देखते हैं. अगर जैसे आई टोल्ड यू सैटर्न एंड मून इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन, तो अगर मून के एक घर आगे या मून के घर में या मून के घर के पीछे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी साढ़े सती है. साढ़े सती इज नथिंग. पता नहीं लोग बहुत डर जाते हैं या डरा देते हैं, बट साढ़े सती वेरी फ्यू कुंडलीज पे ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल.
होम मेकर्स पे उतना इफेक्ट नहीं होता. दिस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द प्लेसमेंट, कि आपका शनि कहाँ बैठा है, वैसे आपको उसके इफेक्ट्स दिखेंगे, गुड और बैड. Okay. तो साढ़े सती इज द पीरियड ऑफ पेशेंस. साढ़े सती इज द पीरियड कि आपको बस पेशेंटली ये 7.5 निकालना है, 7.5 साल निकालना है, अच्छे कर्म करना है. आपके जो बुरे कर्म के फल आपको मिलेंगे तो सही, लेकिन ये 7.5 साल अगर आप अच्छे कर्म करते हो, जब शनि जाता है ना, जाते हुए बहुत कुछ देता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेके जाता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन सिखा के देता है. Understood. तो साढ़े Okay. सती ठीक है, वो वर्ड से पीपल गेट स्कैर्ड बिकॉज दैट इज क्रिएटेड. सबके लाइफ में आता है साढ़े सती, ऐसा कुछ नहीं है कि किसके भी लाइफ में नहीं आता है. एवरीवन फेसेस दैट पीरियड. Hmm. That is the period of learning. If Okay. you know that you are running through a Sadasati, or if you are running through a Saturn Mahadasha, that means you need to have patience over there. You need to work ethically. You need to give your 100%, और एक हार्ड वर्क कंपल्सरी है. ये सब चीज आप करोगे ना तो इफेक्ट नहीं रहेगा, उसका बैड इफेक्ट्स नहीं रहेंगे. So, Rakhi, before we end the podcast, because we said at the beginning of the episode that we'll be talking about astrology basics, which we have already covered, I would really like you to, help us understand, which we have constantly, emphasized on hard work, then astrology, obviously your luck and everything. So what should people, जैसे लोग क्या होता है कि people willy nilly go to astrologer, right? कि मेरा ये ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, and most of the time we are not ready to give in our effort. So what would be your message to those people? सी फर्स्ट थिंग आई वुड से, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो ना, प्लीज आप फेथ रख के. Hmm. If anyone coming to me as a tarot card reader or anything, first you need to have faith. क्योंकि कुछ भी रेमेडी आपको इंस्टेंट वर्क नहीं करेगी. और जो आपको बोलता है कि आप ये कर दो, आप ये करा दो, आप इतने पैसे दे दो, प्लीज डोंट fall into the trap. That is one advice. Second, see, we can just show you, we can just guide you. As astrologers, we can only guide you. लेकिन आपके जो कर्मा है वो आपको फेस करना पड़ेगा. We can just show you the ways कि उसको कम कैसे करोगे, और आपका जो प्लस पॉइंट है, जो आपका प्लस पॉइंट को और एनहांस कैसे करोगे. That is the thing. And secondly, I would say, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहा है कि आप बोल दिए कि आपका घर नेक्स्ट ईयर होगा, लाइक इफ समवन कम्स टू मी एंड सेज कि मेरा घर कब होगा, एंड इफ आई टेल देम सम डेट कि ठीक है ये साल में हो जाएगा, उसका ये मतलब नहीं कि आप अभी बैठ जाओगे और वो जब ईयर आएगा तब बोलोगे कि मैं घर. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो योग तब बन रहे हैं. मेहनत अभी से करोगे ना तब वो क्लिक होएगा, बिना मेहनत के तो नहीं होता. Okay. So we are just guiding people to solve their problems so that easily they can face their problems. Understood. Problems आएंगे. We will not say कि भाई आपने ये आ गए, आप मेरे पास आ गए, मैंने ये कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता. जो लिखा हुआ है वो तो होएगा, बस आप उसको कैसे लेते हैं, that is more important. Normally जब पॉडकास्ट कोई एंड करते हैं, आई आस्क द गेस्ट कि आपका व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है या नहीं. बट ऑन दिस पॉडकास्ट आई विल बी बिट सेल्फिश. मैं बोलूंगा आपका मेरे लिए कोई मैसेज है, मेरे चैनल के लिए कोई मैसेज है. राखी, I would say please आप just be very dedicated to your work, which you are. I've been seeing, like, we are chatting, we are messaging, we are talking. I've shared few things, you've shared few things. I would just suggest just give some time, because see, like a astrologer, as I told you, I'm into many things. I can do face reading. I can see कि इंसान कैसा है, क्या है, how is it. तो ये सब चीज से I can say you कि you are very ambitious. This is a very personal reading to you. You are very ambitious. Success दिख रहा है, थोड़ा सा पेशेंस की कमी है. ओके. And you're doing good, because मैंने आपके पहले के भी देखे पॉडकास्ट. It's going good. You're doing good.
Thank you so much, Rakhi. And with this, we come to the end of our first astrology-based podcast. I know there are a lot of things still to discuss, but obviously we need to keep something for the next, so that we can invite you again. Thank you so much, and it was a really nice experience for me. So Thank I you so hope कि much. आपके लिए भी अच्छा experience रहा. Yes, it was. It was. मतलब I can't even tell in words कि how am I feeling right now. जैसे ये बोल रहे हो कि ये end है, I'm feeling so happy कि at least मेरी knowledge, कहीं तो use हो रही है. That is more important. And thank you, Ronik. I would like to thank all my well wishers, my gurus, my friends, my family first, जो मेरे को इतना encourage करे कि मैं इतना आगे बढ़. So thank you all. Thank you, Rakhi. Thank you so Thank much. you. Thank you.